تاریخ کے پنے پلٹو تو کیا کیا تصویریں رقصاں ہیں، لاکھوں کا لہو رخشاں رخشاں، اب ان پنوں کی زینت ہے میراث کی کھیتی کا سونا، جو ان نسلوں کے ہاتھ لگا وہ ان نسلوں کا تحفہ ہے جو چھوٹ گئیں پر زندہ ہیں۔ تاریخ کے پنے پھر پلٹو، پھر یاد کرو ہر قربانی، میراث کی کھیتی کا کندن دامن دامن بھرتے جاؤ، میراث کی کھیتی کا کندن دامن دامن بھرتے جاؤ۔ گھر کے حالات کی بالکل فکر مت کیجیے گا، ہم سنبھال لیں گے، بس ایک وعدہ ہم سے کیجیے، ظلم چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو آپ کمزور نہیں پڑیں گے۔ ظلم کرنا ظالم کی فطرت ہے، مگر انقلابی جو ملک کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہو اسے کوئی ظلم نہیں جھکا سکتا۔ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یا خدا، مولانا جی کیا ہوا؟ اور یہ کس کا خط ہے جو آپ اپنے آپ میں یہاں سے جا رہے ہیں؟ ہماری بیگم دھمکی دے رہی ہے کہ فرنگیوں کے سامنے کمزور پڑے تو خیر نہیں، بے شک جان دے دینا۔ مولانا بیگم بڑی ہمت والی ہے آپ کی۔ آزادی کی تحریک میں شامل ہونے والوں کی، قربانیاں دینے والوں کی یا شہادتیں دینے والوں کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کے خاندان والوں کا رویہ، ان کے خاندان والوں کی حمایت۔ آزادی کی تحریک میں نہ جانے کتنے ایسے خاندان تھے جو پورے کے پورے یعنی ہر فرد انقلابی تھا۔ اگر کسی ایک نے شہادت دی تو دوسرے نے آزادی کا پرچم لہرا دیا۔ 157 سال پہلے یعنی 1857 کے بعد سے 90 سال تک یہ جدوجہد چلتی رہی اور چلتا رہا وہ دور جس میں بربریت اپنے عروج پر تھی۔ لیکن وہ وقت آج کے وقت سے بہت فرق تھا۔ تب عورتوں کے حقوق کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سماج ایسا سماج تھا جہاں عورت اور مرد برابر نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اس سماج میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم تر سمجھا جاتا تھا۔ سیاسی خیالات رکھنا یا سیاسی جدوجہد کا حصہ بننا تو بہت دور کی بات ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں مگر عورتوں میں نہ کبھی ہمت کی کمی رہی ہے نہ آج ہے، اور اسی لیے آزادی کی جنگ میں عورتیں برابر سے شامل ہوتی رہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام تو ہمیں معلوم ہی ہیں، جیسے رانی لکشمی بائی یا بیگم حضرت محل، لیکن یہ راجا تھے، یہ رانیوں کے خاندان تھے جہاں سے یہ عورتیں نکلیں۔ ان ناموں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے گمنام عورتیں ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا۔ وہ کسی راج پاٹ کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے تخت و تاج کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، وہ اپنے بچوں کی جانشینی کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، وہ اگر لڑ رہی تھی تو ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی، وہ اگر لڑ رہی تھی تو انگریزوں کے ظلم اور تشدد کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی۔ ہم نے آزادی کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں عورتوں کے ساتھ وہی ناانصافی روا رکھی گئی ہے جو ہمارے سماج میں ان سے بڑھتی جاتی ہے۔ تحریک آزادی میں خواتین کا جو حصہ ہے اس سے کہیں کم تسلیم کیا جاتا ہے۔ گمنام جانبازوں کی فہرست میں جن چند خواتین کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف خانہ پوری کے لیے نہیں ہے۔ ان خواتین نے جو کام انجام دیے ہیں اور جن حالات میں انہوں نے کام کیا ان کا ثانی اس وقت تو کیا آج بھی ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں ہے، اور جس بہادر خاتون کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں
उनका नाम है निशातुन्निसा बेगम। मैं समझता हूँ कि सबसे नुमाया जो एक हस्ती है जो हज़रत की ज़िंदगी में कम से कम उनकी सियासत में शामिल हैं, वो है उनकी बेगम। उनके बारे में और बहुत कुछ हमको पता नहीं चलता है, सिवाय इसके कि वो उन्नाव में मुख्तलिफ़ कामों में, सोशल वर्क जिसे कहते हैं, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है, इस बात की भी उससे एक बात पता चलती है कि किस तरह से उस ज़माने में बहुत सी ख़वातीन थीं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया, लेकिन जिनके बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी नहीं होती है। तो बेगम जो हैं वो उसी रैंक में या उसी रोल में थी जिसमें मसलन मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली की बेगम थी या डॉक्टर अंसारी की बेगम थी। तो ये ज़रूरी है कि इन ख़वातीन जो कि पर्दा नशीन थी और जो कि एक तरीक़े से ट्रेडिशनल फैमिली से जिनका ताल्लुक़ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सामने आकर के अंग्रेज़ी हुकूमत का मुकाबला किया। और हसरत की जो बेगम थी, जैसा मैंने कहा कि उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को जो खतूत लिखे, उस खतूत में उनकी शख्सियत जो है उभर करके आती है। निशात अभी तक नहीं आई। आप तो ना खामाखा परेशान हो रहे हैं। आप जानते ही हैं कि वो 5 बजे से पहले नहीं आती है, और आप हैं कि रोज इसी वक्त बेचैन हो जाते हैं उसके लिए। अल्लाह जाने उसके निकाह के बाद आपका क्या होगा। अब ये तो हमने नहीं सोचा, तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, इंतजार तो मुश्किल होगा ही। घर बैठे बिठाए आपको मुल्क और आज़ादी की बातें जो करने को मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको। बेगम, आप क्यों नाराज हो रही हैं? हमारी निशात बहुत समझदार और नेक दिल बच्ची हैं। हम चाहते हैं कि आज़ादी की इस लड़ाई में वो भी शरीक हो। जान, आदाब अम्मी जान। अब्बा जान, पता है आज क्या हुआ? आज हम जैसे ही शेख सादी की कहानी अपनी सहेलियों को सुनाने लगे तो हमारी सहेलियां बोली कि उन्होंने तो ये कहानी सुन रखी है, जबकि उन्होंने अरबी या फारसी की कोई तालीम नहीं ली। कहानियां आरजुओं की तरह होती हैं बेटी, जो मुल्क व जुबान की सरहद को तोड़कर हर जगह पहुंच जाती हैं। और अब अवध और बंगाल को ही ले लीजिए, एक दूसरे से कितने दूर हैं, पर दोनों जगह के लोगों की एक ही आरजू है, आजादी। बेगम निशातुन्निसा ने सन 1885 के करीब मोहान के मशहूर वकील सैयद शब्बीर हसन मोहानी के घर में आंख खोली। इस घर में उन्हें माँ बाप की मोहब्बत के अलावा मुल्क से मोहब्बत का सबक मिला और मुल्क के बुरे हालात बदलने की फिक्र और समझ भी। अपने वालिद के साथ हर दिन के तबादला ख्याल ने उनको मुल्क और दुनिया को समझने का नजरिया दिया और उनकी शख्सियत को एक ठहराव और मजबूती। पढ़ाई पूरी होने के बाद सन 1903 में उनकी शादी हसरत मोहानी से हुई। हसरत मोहानी जो आगे चलकर मौलाना हसरत मोहानी के नाम से मशहूर हुए, एक अच्छे शायर और मुल्क पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले बहादुर इंसान थे। निशातुन्निसा के नए घर का माहौल भी वैसे ही था जैसे उनके मायके का था। मौलाना साहब पढ़ने और लिखने का शौक रखते थे और पढ़ने का शौक बेगम निशातुन्निसा को भी कम न था। सन 1903 में ही मौलाना उर्दू मौला नाम का रिसाला शुरू करने के लिए अपनी बेगम के साथ अलीगढ़ आ गए। यहाँ आकर उन्होंने कुछ किताबें लिखी और छापी और साथ ही सियासत और अदब की तालीम भी हासिल की। सन 1904 से वो मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में सरगर्म हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठकों में शामिल होने लगे। बाल गंगाधर तिलक के साथ उन्होंने 1907 में कांग्रेस छोड़ दी
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में मौलाना हसरत मोहानी को 2 साल की कैद बामशक्कत की सजा दी गई। मौलाना के जेल जाने के बाद सब जिम्मेदारियां बेगम निशातुन्निसा पर आन पड़ी। क्या हुआ निशात? कुछ हुआ हसरत की रिहाई का? कुछ नहीं हुआ फूफी जान, हमने तो पहले ही कहा था कि हमें किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए, जो करना है हमें खुद करना है। बेटा मुझे तो लगा कि वो हसरत के दोस्त हैं, तो शायद कर जाने दो। मुझे परेशानी तो इस बात की है कि बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा है और घर में अनाज भी खत्म हो गया है। ये लीजिए फूफी जान, और इसे बेच आइए। पर बेटी हमारे पास अभी वक्त नहीं है। आगे क्या करना है हम बैठ के सोचेंगे, पर अभी दवाई बहुत जरूरी है। इसे लीजिए और बेच आइए। बेगम निशात ने मौलाना को कभी ये खबर न लगने दी कि वो किन परेशानियों से गुजर रही हैं। जेल में जब भी वो खत लिखती, यही लिखती कि तुम बेफिक्र होकर आज़ादी की जद्दोजहद में जुटे रहो। इन खतों को पढ़कर मौलाना जुनून की हद तक इस जद्दोजहद में जुट जाते। मौलाना जेल से बाहर आते और अपने मजमून फिर लिखना शुरू कर देते। हर मजमून अंग्रेज़ों के खिलाफ जहर में बुझा हुआ होता। अलीगढ़ तहरीक में भी मौलाना ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ नज़रबंद कर दिए गए। बेगम निशात ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाई, उन्हें देखकर मौलाना दंग रह गए। बेगम का जो सबसे अहम रोल है मेरी समझ में, वो उस वक्त होता था जब हसरत जेल जाते थे, और हसरत अक्सर व बेशतर जेल जाते थे। 1908 में जेल गए, 1915 में जेल गए, 1922 में जेल गए। तो जेल जाते रहे और जेल पर उन्होंने जेल में बहुत अच्छी गज़लें भी लिखी हैं। लेकिन असल बात यह है कि उनकी बेगम जो हैं, जिनके खतूत मौजूद हैं, अतीक सिद्दीकी साहब ने उन खतूत को मुरतब भी किया है। उन खतूत में बेगम जो हैं वो बहुत उभर करके उनका रोल सामने आता है, इस माने में कि वो हसरत को बार बार इस बात पर उकसाती हैं कि आप अंग्रेज़ी हुकूमत से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ न करें। और उनको नाज था, उनको फ़ख्र था कि हसरत जो है वो जंग आज़ादी में इस तरह से शामिल थे और आज़ादी को हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ की। सन 1916 में मौलाना को फिर जेल भेज दिया जाता है। इसी साल से बेगम निशात भी तहरीकों में कूद पड़ी और मौलाना की जंग को आगे बढ़ाने में नुमाया किरदार निभाया। उन्होंने मीटिंग्स में भी शिरकत की और मौलाना की किताबों की छपाई और बिक्री के काम को भी संभाला। उन्होंने मौलाना की लिखी गई किताबों की बिक्री शुरू कर दी और मौलाना जेल में जो कुछ लिख रहे थे उन्हें छापना भी जारी रखा। अब लोग उन्हें बेगम हसरत मोहानी की तरह ही नहीं बल्कि बेगम निशातुन्निसा के नाम से ज्यादा जानते थे। मौलाना हसरत के जेल से रिहा होने के बाद वो उनके साथ काम करने लगी और हर तहरीक में उनके शाना बशाना खड़ी होती थी। सन 1922-23 में उन्होंने स्वदेशी तहरीक में शिरकत की और उसे अपनी जिंदगी में भी पूरी तरह उतार लिया। सन 1924 में जब मौलाना हसरत को पूना जेल भेजा गया तो वो कुछ दिन पूना में भी रही। वहां भी उन्होंने किसी की मदद लेना गवारा नहीं किया और मौलाना की किताबों की बिक्री से होने वाली थोड़ी बहुत आमदनी पर ही गुजर बसर की। और ये इसके बावजूद कि पूना और बंबई में मौलाना के बहुत से दोस्त और अकीदतमंद थे जो हर तरीके से मौलाना और बेगम निशात की मदद करना चाहते थे।
पर बेगम निशात ने किसी का एहसान लेना मुनासिब नहीं समझा। ये मियाँ बीवी हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे। हजरत मोहानी साहब बराबर जेल आना जाना इनका लगा रहता था। तो उस दौरान जब मुसलमानों ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहा तो ये बड़ी खुददार थी, बीवी निशात निसा बड़ी खुददार हुआ करती थी। इन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी तरीके की कोई मदद नहीं चाहते, किसी तरह की कोई ताउन नहीं चाहते। अगर आप हमारे शौहर को पसंद करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि उनकी किताबों को पढ़िए, उनकी किताबों को ख़रीदिए, और यही हमारी माली मदद होगी। क्योंकि जब घर घर स्वदेशी मूवमेंट पॉपुलर हो जाएगा, जो कि हमारे हस्बैंड हमारे शौहर का मकसद है कि उर्दू मुअल्ला के थ्रू लोगों के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको पहुंचाना, तो ये हमारा अहम मकसद है और यही हमारे लिए आपकी मदद इमदाद होगी। हम किसी तरीके का फाइनेंशियल मदद आपसे नहीं चाहते हैं। बड़ी खुददार औरत के फॉर्म में ये दिखती है। आदाब। आदाब। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम किशन प्रसाद है। अरे किशन भाई साहब, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं, पर मौलाना साहब अक्सर आपका जिक्र करते हैं। आइए अंदर आइए। जी कहिए कैसे आना हुआ? जी मैं अभी मौलाना साहब से मिलकर आ रहा हूँ। एक तो आपको उनका पैगाम देना था और दूसरे एक गुजारिश करनी थी। जी कहिए ना भाई साहब। पैगाम यह है कि मौलाना साहब की तबीयत अब बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने कहलवाया है कि आप उनके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। और एक गुजारिश है। जी कहिए ना भाई साहब, आप रुक क्यों गए? जी वो हमारी तंजीम ने मौलाना साहब के लिए कुछ रुपए इकट्ठा किए हैं ताकि घर में काम आ सके। अगर आप इसे कबूल कर लें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना सोचा, यही हमारे लिए बहुत है। पर ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। पर घर में तो अभी जरूरत है ना बहन जी। फिर मौलाना साहब तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हमारा भी कुछ फर्ज है ना कि हम इस लड़ाई में किसी तरह शरीक हो सकें। जी घर की ज़रूरतें तो मैं मौलाना साहब की लिखी किताबें बेचकर पूरी कर लेती हूँ, और इससे ज़्यादा तो घर की ज़रूरतें होती भी नहीं। पर फिर भी अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इन्हें बेचने में हमारी मदद कर दीजिए। तो इस तरह बेगम निशात ने सारी जिंदगी तंगदस्ती में गुजार दी। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं मांगी। उन्हें मालूम था कि वह आज़ादी की जंग में उतरी हैं और यहाँ सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही हिम्मत बख्शता है। कानपुर में एक तहरीक की क़यादत करते हुए उन्हें पता लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई सेवा दल ने लाठी चार्ज कर दिया है। उन्होंने इस लाठी चार्ज, इस हिंसा की इतनी मजम्मत की कि पंडित नेहरू को खुद आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। जब मौलाना ने मुकम्मल आज़ादी की मांग का ऐलान किया तो बेगम निशात अपने काम से जुट गईं। लातादाद मजमून छापे और घर घर जाकर बांटने का काम संभाल लिया। जब भी मौलाना जेल में होते, बेगम निशात घर घर के लिए निकल खड़ी होती, औरतों को आज़ादी की जद्दोजहद में लाने के लिए कोशां रहती, और यही मौलाना की मकबूलियत का सबब बना। सन 1929 में कानपुर से मौलाना ने मुस्तकिल नाम का अखबार निकालना शुरू किया। मौलाना की सियासी मसरूफियात की वजह से अखबार का पूरा काम बेगम निशात ने संभाला। उसी साल कानपुर में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस में बेगम निशात ने मौलाना के साथ शिरकत की। आज़ादी की लड़ाई हो या मुसलमानों के हकों के लिए जिद्दोजहद, बेगम निशात कभी भी पीछे नहीं रही। बेगम ने मुल्क की खिदमत के साथ साथ
عورتوں کی تعلیم، خاص طور پر مسلم خواتین کی تعلیم کے لیے لگاتار کام کیا۔ ایسے وقت میں جب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، سارے گھر کو سنبھالا اور اپنی بیٹی کی تمام تعلیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی۔ تحریک آزادی کے لیڈروں میں، اور ان میں اکثریت تو مردوں کی ہی تھی، کتنے ایسے تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی کے ساتھ ساتھ گھر بھی چلایا ہو، سماج کے پچھڑے پن کے خلاف بھی کام کیا ہو اور گھر کا خرچ بھی اٹھایا ہو۔ نشاط النساء نے یہ سب کچھ کیا، مگر ہم نے انہیں بھلا دیا۔ عورتوں کو سماج میں برابری کا درجہ دلانے کی لڑائی میں بیگم نشاط النساء کی مثال آج بھی عورتوں کی ترقی کی راہ روشن کرتی ہے۔ جس دور میں زیادہ عورتوں کو گھر کی چہردیواری سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنے پر بھی پابندی تھی، اس دور میں بیگم نشاط نے اپنی زندگی کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور اسے اس سمت موڑا جس میں وہ اپنی زندگی کو لے جانا چاہتی تھی۔ گھر سنبھالا، ملک کی طرف جو ذمہ داریاں تھیں اسے نبھایا، اور کس خوبی سے نبھایا۔ جو خط انہوں نے مولانا کو جیل میں لکھے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیگم نشاط النساء کی سیاسی سمجھ کتنی گہری اور صاف تھی۔ علی گڑھ میں مولانا حسرت موہانی نے موہانی سودیشی اسٹور کھولا، جسے مولانا کی گرفتاری کے بعد علی گڑھ کے شریف اور پڑھے لکھے خاندانوں کی تمام نکتہ چینی کے باوجود بیگم نشاط النساء نے نہ صرف چلایا بلکہ دور دور تک سفر کر کے لوگوں کو سودیشی کپڑے اور سامان استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی۔ یہاں تک کہ سودیشی کے بارے میں ینگ انڈیا کے ایک مضمون میں گاندھی جی نے نشاط النساء بیگم کی مثال اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھی۔ سودیشی اسٹور کا چلانا بیگم نشاط النساء کی سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت تو ہے ہی، یہ عورتوں کی اقتصادی اور سماجی آزادی کی طرف بڑھائے جانے والے شروعاتی اہم قدم ہیں۔ تو حضرت نے ہی علی گڑھ میں ایک سودیشی اسٹور بنایا 1908 میں، جہاں تک کہ مجھے یاد ہے، اور اس سودیشی اسٹور میں ایک طریقے سے یونیورسٹی میں، ایک ایسی یونیورسٹی میں جو کہ بہت پرو برٹش تھی، انگریزوں کے ساتھ تھی، اور جس کی سیاست جو تھی وہ بالکل کانگریس یا نیشنل موومنٹ کی سیاست کے خلاف تھی، ایک ایسی یونیورسٹی میں اس قسم کا اسٹور بنانا اور اس میں ان بیگم کا ساتھ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے شروع میں جنگ آزادی ابھی پوری طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ سودیشی موومنٹ ہو چکا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ زور جو ہے جو گاندھی جی کے آنے کے بعد جنگ آزادی نے پکڑا وہ اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت نے نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے جیل، جیسا کہ میں نے کہا کہ جیل گئے، بلکہ اپنی شاعری سے اور اپنی سیاست سے اپنی بیگم کے ساتھ مل کر کے ایک طریقے سے انہوں نے ایک مثالی پیش کی۔ عورتوں کی خود مختاری اور آزادی کی تحریک کی یہ بہادر لیڈر 1937 میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بیگم نشاط النساء ایک ایسی مثال اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے جو آنے والی ان گنت پیڑھیوں کو روشنی دکھائے گی، شرط یہ ہے کہ ہم انہیں گمنام نہ ہونے دیں۔